student, so in this video we are going to understand your next type of movement जिसको आप बोलते हो trophic movement. Okay, dear student, we have understood two types of movement that occurs in plant, right? One is growth dependent and second is growth independent, right? In last video we people have seen your growth independent movement that is called as your nastic movement, जो कि non directional होती है. It do not leads to growth. Am I clear? In today's video we are going to understand your growth dependent movement. What we are going to understand your growth dependent movement. Okay, and ये जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? दिस इज योर डायरेक्शनल मूवमेंट, राइट, विच लीड्स टू ग्रोथ, विच लीड्स to growth, and such movements are called as your trophic movement. Am I clear? So what is trophic movement? It is growth dependent movement, it is directional movement which leads to growth. Am I clear? Once again, यहाँ पे भी external factor stimulus is required, and this stimulus can be any: light, temperature, touch, chemical, or any stimulus or any external factor. Okay, depending on this external factor, depending on this stimulus, we have your total 6 type of your trophic movement. Okay, so let's start with your first trophic movement, and that is called as your thigmotrophism. What it is called as? Thigmotrophism. Okay, if I am using about your thigmotrophism, तो यहाँ पे जो stimulus है वो क्या है? Touch. The stimulus is touch. Okay, if I want to give some example over here, so you people have seen some plants like pea. If you people have seen some plants like pea, so they have a very thin thread-like structure. Have you noticed? Very thin thread-like structure, and this thread-like structure is called as your tendrils. Is called as your tendrils. Okay, now if I want to draw the diagram for the same, चलो मान लो ये कोई plant है, I mean to say pea plant है, यहाँ पे ये उसके leaves है, as you can see over here, ये उसके क्या है? Leaves है. अब ये जो stem होता है ना, स्टेम होता है वो कैसा होता है? इट इज वीक. वो होता है वीक. इट कैनॉट बी इरेक्ट. इट कैनॉट बी इरेक्ट. उसको क्लाइंब करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? कोई सपोर्ट चाहिए. ओके, कम बैक टू दिस टेंड्रिल. इट्स अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलो टेंड्रिल. अब देखो यहाँ पे जब ये टेंड्रिल्स को कोई सॉलिड सपोर्ट मिले, क्या मिले? solid support मिले, तो it will get, it circles around that, it circles around that and it clings there, it clings there. Are you getting my point? चलो ये देखो, ये जो है, can you see this? This is your tendrils. ये क्या है? This is your tendrils. अब देखो, जब ये टेंड्रिल को क्या मिले? ये सपोर्ट है. मान लीजिए दिस इज सम सॉलिड सपोर्ट, दिस इज सम सॉलिड सपोर्ट. एम आई क्लियर? सो देखो क्या होता है, व्हेन योर टेंड्रिल, ये जो टेंड्रिल है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ योर पी, वंस इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, यहाँ का जो ग्रोथ होता है, यहाँ का जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? इट इज स्लो. In comparison to other part, it is slow in comparison to other part, and जिसकी वजह से it circles, जिसकी वजह से it coils around this, जिसकी वजह से it coils around this and clings there, and it clings there. Am I clear? So since growth is directional, yes or no? Since growth is directional, this is called as your trophic
मूवमेंट. ओके, नहीं समझ में आया? मैंने ये बोला थिग्मोट्रॉफिज्म, स्टिम्युलस टच. एग्जाम्पल मैंने बोला पिन में होते हैं थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलो टेंड्रिल. जब ये टेंड्रिल मानिए कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ सॉलिड सपोर्ट, तो यहाँ का जो ग्रोथ होता है इज स्लो इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट, जिसकी वजह से ड्यू टू इट्स स्लोअर ग्रोथ इट गेट्स coil around the support. It clings there, it circles that support and helps this weak stem to climb up. तो ये हो गया आपका थिग्मोट्रॉफिज्म. ठीक है. नाउ सेकेंड कम्स इज योर फोटोट्रॉफिज्म. अब बहुत ही इजी है. चलो, फोटोट्रॉपिज्म इफ आई एम यूजिंग द टर्म, तो यहाँ पे जो स्टिम्युलस है वो क्या होना चाहिए? फोटो इन द सेंस योर light, and you very well know that in stimulus of light who will grow? Stem. Who is going to grow in stimulus to light? Your stem. Who grows away from light is your root, and thus I can say that आपका जो stem है it is positively phototrophic, मतलब it grows in डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, मतलब इट ग्रोज अवे फ्रॉम लाइट. सिंपल एज दैट. ये तो आपको अच्छे से पता है, राइट? सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मच दिस. चलो, फिर थर्ड कौन सा आया? ये फोटोट्रॉफिज्म है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट योर जियोट्रॉपिज्म. ये बहुत ही इजी है. जियो का मतलब यहाँ पे जो स्टिम्युलस है, वो क्या है? अर्थ ग्रेविटी. वो क्या है? अर्थ ग्रेविटी. अगेन यहाँ पे भी आपके दो ऑप्शंस बनेंगे. दो ऑप्शंस कौन कौन से? योर रूट एंड योर shoot. Who will grow in direction of gravity? That is your root, right? Who grow against gravity? That is your shoot. Yes or no? So rather than this I am writing it grows against gravity. तो ये हो गया आपका positively geotrophic, and ये हो गया आपका negatively geotrophic. Simple as that. है ना? You people have seen. If I want to draw, तो ये soil, ये root grows in direction of gravity. So positively geotrophic. Shoot grows against gravity. Negatively geotrophic. अब sun यहाँ पे है, तो in direction of sun. तो stem हुआ positively phototrophic. अवे फ्रॉम सन, ये ऐसे जाता है अवे फ्रॉम सन, तो ये कैसा हो गया? नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक. ठीक है. सो आई होप ये आपको समझ में आया. मैंने क्या समझाया आपको? पॉजिटिव एंड नेगेटिव वन. ठीक है. चलो, देन फोर्थ इफ आई वांट टू राइट, वो बहुत ही सिंपल है. फोर्थ वन इज योर हाइड्रोट्रॉफिज्म. हाइड्रोट्रॉफिज्म. ओके, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे जो स्टिम्युलस है, व्हाट इज दिस स्टिम्युलस? स्टिम्युलस इज हाइड्रो, मतलब क्या? वाटर. हाइड्रो मतलब क्या? वाटर. एम आई क्लियर? तो यहाँ पे अगेन दिस इज योर मान लीजिए प्लांट है, ये उसका रूट सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे पानी प्रेजेंट है, ओवर हियर वाटर इज प्रेजेंट. ओके, सो ये जो रूट्स है इट इज गोइंग टू ग्रो. एज यू कैन सी ओवर हियर, इट इज गोइंग टू ग्रो in direction of water, directional movement, and this is what I mean by hydrotrophism. ठीक है, तो in direction to water, in direction to
water is your hydrotrophism. Simple as that. Then comes your thermotropism. Okay. Now if I am talking about thermotropism, तो यहाँ पे जो stimulus है, as the name suggests, thermo मतलब होता है temperature. Thermo मतलब क्या होता है? Temperature. Am I clear? So there are certain plants who respond to fluctuating atmospheric temperature. Am I clear? Okay. And the last comes is your chemotropism. ठीक है? तो chemotropism is, if I am using the term, तो यहाँ पे stimulus क्या होगा? कीमो का मतलब क्या होता है? Chemicals. क्या होता है? Chemicals. Am I clear? Okay. Here if I want to give one example, तो हमने वो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़ा, राइट? सो देखो, फॉर दिस आई एम ड्रॉइंग, फॉर कीमोट्रोपिज्म आई एम ड्रॉइंग दिस, ठीक है? दिस इज योर स्टिग्मा. ये क्या है? ओवरी है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है, राइट? एंड ओव्यूल के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियो सेक. क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियो सेक. ठीक है? अब पोलन यहाँ पे आके बैठी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे कोई पोलन आके बैठी. अब भाई देखो, इज इट नेसेसरी दैट दिस पोलन बिलोंग्स टू दिस स्पीशीज? यस और नो? नो, इट इज नॉट सो. कोई भी पोलन यहाँ पे आके बैठ सकती है. Once again, what I am trying to say that, say for example, if you are talking about your mango, right? तो मैंगो की जो पोलन होती है वो मैंगो के स्टिग्मा पर ही एक्सेप्ट हो सकती है. ओके, आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बोला मैंगो की पोलन एंड एप्पल का स्टिग्मा, तो ये तो डिफरेंट स्पीशीज हो गई ना, डिफरेंट स्पीशीज हो गई. यस, अब ये पॉलिनेशन तो हम नहीं करते, वो बायोटिक एजेंट करते हैं, विंड, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स करते हैं, तो वो तो रैंडम होगा. इनको थोड़ी बताना है कि एप्पल की पोलन एप्पल के स्टिग्मा पे ही लैंड करनी है. इट इज नॉट सो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द पोलन मे बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज ऑल्सो. Different species also. Say for example, ये कोई गुआवा का कार्पेल है और ये लेमन की पोलन है, मान लीजिए, फॉर योर एक्सप्लेनेशन. ओके, तो ये तो अलग अलग स्पीशीज हो गई ना. कहाँ लेमन, कहाँ गुआवा, अलग अलग स्पीशीज हो गई. तो ये पोलन यहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो पाएगी. प्लांट को कैसे पता चले कि पोलन जर्मिनेट करनी है नहीं करनी है? बाय, पता चलेगा बाय सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स बाय स्टिग्मा ऑफ कार्पेल. ठीक है? वो कुछ केमिकल रिलीज करता है. अगर उसको लगे कि वो अपनी ही पोलन है, ओनली देन पोलन ट्यूब कम्स आउट. ओनली देन the pollen tube come out which have our gametes. Am I clear? Or else I can say the movement of pollen tube by absorbing calcium and boron of style. Okay, by absorbing, what I am writing over here, for this I am writing, it is movement. किसकी movement? pollen tube की movement by absorbing calcium and borax from style. ठीक है? ये भी एक केमिकली है. पोलन ट्यूब ने क्या एब्जॉर्ब करा? कैल्शियम एंड बोरॉन, जो कि केमिकल है, एंड इट ग्रोज. यस और नो? यस. सो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गई आपकी ट्रॉफिक मूवमेंट. ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, डायरेक्शनल होती है. इट इज डायरेक्शनल विच लीड्स टू ग्रोथ. ओके, थिगमोट्रॉफिज्म
touch, phototrophism, light, geotrophism, gravity, thermotrophism, temperature, chemotrophism, chemical. Am I clear? So I hope you understood this video really very well. Thank you very much.